Assalamualaikum. Second year. I'm Dr. Nuran, course in charge of second year pharmacology. This topic is the continuation of our last topic is IBD and IBS. Now we discuss inflammatory bowel disease. As we have already discussed IBS, that is inflammatory bowel syndrome. Now we discuss inflammatory bowel disease. The learning objective of this topics are we discuss drugs for inflammatory bowel disease, classification of drugs used for the treatment of IBD, describe the mechanism of action of aminosylates, illness, the use and adverse effect of various aminosylates. We discuss the role of glucocorticoids and immunosuppressants in IBD and other immunosuppressants in IBD. What is IBD? As we have already discussed, IBD is an umbrella term that covers inflammation-related digestive diseases. IBD is basically divided into two further types, that is Crohn's disease and ulcerative colitis. Both involve chronic inflammation and as usually involve serious symptoms like diarrhea, chronic fatigue, weight loss, abdominal pain and cramping. हम इसको already पहले discuss कर चुके हैं to some extent. IBD बेसिकली आपके पास क्या है? बेसिकली IBD जो है वो तमाम इन्फ्लेमेटरी रिलेटेड डाइजेस्टिव डिजीजेस को कवर करता है, एक अम्ब्रेला टर्म है IBD, जिसमें हम फर्दर उसको टू मेन कैटेगरी में फर्दर डिवाइड करते हैं, कॉर्न डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। दोनों की जो सिम्टम्स हैं वो बेसिकली क्या है? दोनों में सिम्टम आपके पास डायरिया, क्रोनिक फटीग, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग इसमें मौजूद है। अब ये डिफरेंट कैसे हैं? बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन कॉर्न एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। Crohn's inflammation tends to occur in patches. इसमें आपके पास जो Crohn's disease है, इसमें क्या inflammation tend to occur in patches. Whereas ulcerative colitis inflammation is more likely to be uniform or continuous. इसमें patches में हो रही है inflammation, जगह जगह patches मौजूद है, यहाँ पे आपके पास जो uniform और continuous form में inflammation मौजूद है। Can affect any part of the GI tract from the anus to the esophagus. जीआई के किसी भी पार्ट के अंदर एनस से इसोफेगस से लेके एनस तक आपके पास जो है वो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन किसी भी पार्ट में हो सकती है। लोकलाइज्ड रेक्टम एंड लार्ज बाउल, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन आपके पास में लोकलाइज्ड है, बेसिकली रेक्टम और लार्ज बाउल में लोकलाइज्ड है। ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल नॉट एज कॉमन। कॉर्न डिजीज के अंदर ब्लड और म्यूकस स्टूल में ज्यादातर कॉमन यानी देखा नहीं गया, जबकि whereas in ulcerative colitis blood and mucus in the stool are common. Can also cause nausea and vomiting. Nausea and vomiting not as usually seen. Basically ulcerative colitis नहीं देखा गया. Abdominal pain may be more severe or continuous, whereas in pain is more likely to be intermittent and experience with bowel movement. Basically bowel movement के साथ pain experience होता है, वैसे आपके पास जो है वो continuous pain इसमें observe नहीं किया गया। Inflammation present in mucosa and muscle tissue. Inflammation आपके पास जो है वो mucosa deep layer से हमने कहा था कि बेसिकली जो IBD है डीप लेयर से चली जाती है इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट म्यूकोसा एंड मसल टिश्यू तक इन्फ्लेमेशन जो है वो लीड कर जाती है। टिपिकली इन्फ्लेमेशन इज कन्फाइंड टू म्यूकोसा, बेसिकली म्यूकोसा तक कन्फाइंड रहती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। Granulomas is specific cell formation developed by the immune system to isolate threat to the body. Basically granulomas जो है क्या करते हैं? बेसिकली आपके पास जो है वो इम्यून सिस्टम के सेल जो है वो आइसोलेट कर लेते हैं, बाकी टिश्यूज को प्रिवेंट करने के लिए आइसोलेशन इम्यून सिस्टम के सेल्स कॉज करते हैं ताकि दूसरे टिश्यू इसमें अफेक्ट ना हो सके। तो इसमें देखा गया कि ग्रेनुलोमास जो है वो एज यूजली प्रेजेंट होते हैं, typically not as likely to cause granulomas. इसमें आपके पास ulcerative colitis में granulomas नहीं होते। अच्छा नेक्स्ट आपके पास most likely to cause fistulas, small tunnels, fissures और narrowing in the bowel बेसिकली कॉज होती है इसमें, जब आपके पास फिस्टुला फीचर जो है बेसिकली लेस कॉमन है। More commonly seen in smokers. कौन आपके पास स्मोकर्स के ज्यादा देखी गई है, more commonly associated with non और ex smokers के अंदर भी मौजूद है ये। Treated with steroids, immunosuppressants, medication and biologics, but 5-amino salicylic acid not as usually as effective. इसके अंदर 5-amino salicylic acid आपके पास ऐसा इफेक्टिव नहीं होता। इम्यूनोसप्रेसेंट और स्टेरॉइड्स के थ्रू जो है वो ट्रीटमेंट, एंटी मेटाबोलाइट्स के थ्रू ट्रीटमेंट की जाती है, जबकि इसमें ट्रीटमेंट विद स्टेरॉइड
5-aminosalicylic एसिड, इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो है एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंट जो है वो अफेक्टिव होते हैं। सर्जरी में नॉट एलिमिनेट द डिजीज, इसमें सर्जरी एलिमिनेट नहीं करती क्योंकि जो है पैचेस की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। सर्जरी टू द कोलन will require resolve the disease, क्योंकि एक स्पेसिफिक कंटिन्यूस आपके पास जो है वो पैच है ना, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस पैच मौजूद है, तो वो सर्जरी के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाता है। नाउ थेराप्यूटिक पैरामीटर, बेसिकली आपके पास अप्रोचेस थेराप्यूटिक पैरामीटर अप्रोच टू द आईबीडी बेसिकली इसमें डिस्कस किया गया है। इनमें सीवियरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थेरेपी के अकॉर्डिंगली हमने जो है पैरामीटर बनाया है। माइल्ड कंडीशन के अंदर बिडेसिनोइड, आपके पास टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीबायोटिक्स और 5-aminosalicylates जो है वो एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं रिस्पॉन्सिव पेशेंट के अंदर। मॉडरेट के अंदर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंटागोनिस्ट, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मेथोट्रेक्सेट, एविथियोप्रिन, सिक्समेल्केटोप्यूरिन जो है वो एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। सीवियर कंडीशन के अंदर सर्जरी, देखिए जैसे सर्जरी अगर हो सकती है, सर्जरी का ऑप्शन भी मौजूद है। डेलिजुमैब, आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, साइक्लोस्पोरिन दिए जाएंगे, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंटागोनिस्ट एंड इंट्रावेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो एडमिनिस्टर किए जाते हैं आपके पास रिफ्रैक्टरी कंडीशन या सीवियर कंडीशन के अंदर। नाउ aminosalicylates, aminosalicylates drug that contain 5-aminosalicylic acid have been used successfully for decades in the treatment of IBD. aminosalicylic acid आपके पास जो है वो IBD में जो है वो बहुत सक्सेसफुली काफी आसानों से जो है वो यूज किए जा रहे हैं। 5-aminosalicylic acid differ from salicylic acid only by the addition of an amino group at the 5th metaposition, से ये डिफर करता है। aminosalicylates are believed to work topically, not systematically, in areas of disease gastrointestinal mucosa. Topically work करते हैं, systematically work नहीं करते। Up to 80% of unformulated aqueous 5-aminosalicylic acid is absorbed from the small intestine and does not reach the distal small bowel. Basically जो है आपके पास 5-aminosalicylic acid है जो आपके पास जो है वो स्मॉल बाउल तक है, डिस्टल स्मॉल बाउल तक नहीं पहुंचता जो एक्वस फॉर्म में मौजूद है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिस्टल स्मॉल बाउल तक जैसे जूजिनम और इलियम तक नहीं पहुंचता, और कोलोन इन एप्रिसिबल क्वांटिटीज। To overcome the rapid absorption of 5-aminosalicylic acid from the proximal small intestine, a number of formulations have been designed to deliver 5-aminosalicylic acid to various distal segments of the small bowel or the colon. बेसिकली आपके पास जो है ये ओवरकम करने के लिए इसकी जो रैपिड एब्जॉर्प्शन जो कि 5-aminosalicylic एसिड के स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, तो इसके जो है बेसिकली हमने क्या डिजाइन किया, इसके न्यू फॉर्मुलेशन डिजाइन की गई हैं जो कि डिस्टल सेगमेंट्स तक के और स्मॉल बाउल और कोलोन तक के जो है वो डिलीवर करती है मेडिसिन। These include sulfasalazine, osalazine, bisulfazide and various forms of mesalamines, इसमें जो है वो included है। एजो कंपाउंड आपके पास बेसिकली सल्फासालाजीन, बाइसोलाजाइड, ओसालाजीन contain 5-aminosalicylic acid bound by an azo. That azo compound is nitrogen double bond. Double covalent bond is present between two nitrogen atoms. Is bound to an inert compound or another 5-aminosalicylic acid molecule. बेसिकली आपके पास जो है इनमें जो है ये क्या एजो बाउंड मौजूद है जो कि इसमें आपके पास 5-aminosalicylic acid ग्रुप जो है इसके साथ जाके बाइंड कर जाता है। In sulfasalazine, 5-aminosalicylic acid is bound to sulfapyridine. In bisulfazide, 5-aminosalicylic acid is bound to 4-aminobenzoyl beta-alanine. And in osalazine, 2 5-aminosalicylic acid molecule are bound together. इनमें आपके पास ये डिफरेंस मौजूद है, ये केमिकल डिफरेंस इसमें शो किया गया है। The average structure markedly reduces the absorption of the parental drug from the small intestine. How? Because in the terminal ileum and colon, resident bacteria cleave the azo bond by means of an azoreductase enzyme, releasing the active 5-aminosalicylic acid. आपके जो है बेसिकली कैसे बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन को जो रिड्यूस करता है, ऐसे बेसिकली आपके पास टर्मिनल इलियम और कोलोन के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि आपके पास एजो बॉन्ड को जो है वो बेसिकली जो है वो क्लेव करने की एबिलिटी रखते हैं। इनके पास एंजाइम होता है एजोरेडक्टेज एंजाइम जो कि आपके पास एजो बॉन्ड को क्लेव करता है और रिलीज करता है 5-aminosalicylic acid इन द इलियम एंड कोलोन।
हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव ड्रग आर मेड अवेलेबल इन द टर्मिनल इलियम और कोलन। इस तरह से आपके पास हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग अवेलेबल हो जाती है टर्मिनल इलियम और कोलन के अंदर। मिसालामाइन कंपाउंड, मिसालामाइन आपके पास जो है बेसिकली 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड फॉर्मुलेशन आर नोन जेनेरिकली एज मिसालामाइन फॉर्मुलेशन। इसमें आपके पास फर्दर डिवाइड हुए मिसालामाइन को फर्दर डिवाइड कर देते हैं इस एज पर डिफरेंट फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंगली। Pentasa is a mesalamine formulation that contains time-release microgranules that release 5 amino salicylic acid throughout the small intestine. उसमें आपके पास जो टाइम रिलीज माइक्रोग्रेन्यूल्स की फॉर्म में 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड को जो है थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो रिलीज किया जाता है। एवरकोल और एप्रेसो 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड कोटेड इन अ pH सेंसिटिव रेजिन जो कि आपके पास डिसॉल्व होता है एट pH 67। और pH 67 किसकी होती है? डिस्टल इलियम एंड प्रॉक्सिमल कॉलन की। मींस के डिस्टल इलियम प्रॉक्सिमल कॉलन में जब पहुंचेगा तो ही ये रेजिन डिसॉल्व होगा और फिर रिलीज करेगा 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। Lambda also uses a pH dependent resin that encases a multi matrix core। इसमें आपके पास pH dependent resin से तो कोटेड है लेकिन ये अंदर से क्या है? मल्टी मैट्रिक्स कोर है। इसमें आपके पास जो है जैसे ही आपके पास pH सेंसिटिव रेजिन जो है वो कोलन में पहुंचता है तो उसका जो कोर है वो इसका जो है वो बेसिकली आपके पास सेंसिटिव रेजिन जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। देन आपके पास जो है वो वाटर पेनिट्रेट करता है हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक कोर्स के अंदर लीडिंग टू द स्लो रिलीज ऑफ मेसालामाइन थ्रू आउट द कोलन। 5 amino salicylic acid also may be delivered in high concentration to the rectum and sigmoid colon by means of enema formulation or suppository। rectum और sigmoid colon में हम जो है by means of enema formulation suppository के through 5 amino salicylic acid को deliver कर देते हैं। Mechanism of action of 5 amino salicylic acid। The primary action of salicylates and other NSAID is due to the blockade of prostaglandin synthesis by inhibition of cyclooxygenase। बेसिकली आपके पास जो प्राइमरी एक्शन है आपके पास जो है सैलिसाइलेट्स का वो दूसरे एनसेड्स की तरह जो क्या करता है? ब्लॉक करता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है और जो है इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजिनेसिस को। साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम्स को जो है वो इनहिबिट करता है। However, amino salicylates have variable effects on prostaglandin production। आपके पास जो अमीनो सैलिसाइलेट्स हैं उनके जो है वेरिएबल इफेक्ट होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन के ऊपर। इट इज थॉट दैट 5 amino salicylic acid modulate inflammatory mediators drive from both cyclooxygenase and lipoxygenase pathway के थ्रू जो भी inflammatory mediators ड्राइव होते हैं उन तमाम को जो है वो आपके पास जो है वो मॉड्यूलेट हो जाते हैं 5 amino salicylic acid से। Other potential mechanism of action of 5 amino salicylic acid drugs relate to their ability to interfere with the production of inflammatory cytokines। तो inflammatory cytokines जो कि आपके पास inflammatory cells के थ्रू रिलीज होते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो है वो बेसिक इसमें भी जो है ये इंटरफेयर करता है, साइटोकाइंस को रिलीज नहीं होने देता जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो फर्दर एनहांस होती है। तो ये आपके पास साइटोकाइंस के रिलीज को भी इनहिबिट करता है। 5 amino salicylic acid inhibit the activity of nuclear factor kappa beta, an important transcription factor for pro-inflammatory cytokines। अब देखें आपके पास बेसिकली pro-inflammatory cytokines को कैसे इनहिबिट कर रहा है? बेसिकली कैसे आपके पास जो है जो न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा है बेसिकली इसको इनहिबिट कर देता है जो बेसिकली जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है pro-inflammatory cytokines की। तो 5 amino salicylic acid में also inhibit cellular functions of natural killer cells, mucosal lymphocytes and macrophages। बेसिकली आपके पास यहाँ पे इसका एक और फंक्शन क्या इनहिबिट करता है? सेलुलर फंक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल के सेलुलर फंक्शन को इनहिबिट करेगा मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स जो कि आपके तमाम एंटी आपके पास जो है वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। आपके पास जो है इन्फ्लेमेशन में प्रोड्यूस होती हैं सेल्स तमाम के तमाम नेचुरल किलर सेल्स म्यूकोसल लिम्फोसाइट्स और आपके मैक्रोफेजेस जहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे ये ऑक्सीजन बर्स्ट प्रोड्यूस करते हैं। उस ऑक्सीजन बर्स्ट प्रोड्यूस करने की वजह से जो है जो आपके सराउंडिंग सेल्स हैं वो भी जो है वो अफेक्ट होने लगते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन फर्दर जो है वो आगे बढ़ती है। तो इन सेल्स की एक्टिविटी को अगर कंट्रोल कर लिया इनहिबिट कर दिया जाए तो हमारे पास जो है
इन सेल्स की एक्टिविटी अगर इनहिबिट हो जाए तो आपके पास क्या जो है ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन मेटाबोलाइट नहीं प्रोड्यूस होते और इन्फ्लेमेशन जो है वो आपके पास जो है वो क्या कंट्रोल हो जाती है। तो हमारे पास ये आपके पास इनहिबिट करता है सेलुलर फंक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स, म्यूकोसल लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस। और इसके बेंच कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स। कैसे? क्योंकि इनके ऑक्सीडेटिव बर्स्ट को प्रोड्यूस नहीं देना। Clinical use: 5-aminosalicylic acid drug induced and maintained remission in ulcerative colitis and are considered to be the first line agent for the treatment of mild to moderate active ulcerative colitis। हमने स्टार्ट में डिस्कस किया डिफरेंसेस में कि 5-aminosalicylic acid ulcerative colitis में जो है फर्स्ट एजेंट ऑफ द ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। बेसिकली their efficacy in Crohn's disease is unproven, although many clinicians use 5-aminosalicylic agent as first-line therapy for mild to moderate disease involving colon and distal ileum। लेकिन आपके पास Crohn's disease के अंदर ये 5-aminosalicylic acid जो है हम यूज करते हैं वो पेशेंट जिनमें आपके पास जो है Crohn's disease में colon और distal ileum इन्वॉल्व हो। The effectiveness of 5-aminosalicylic acid therapy depends in part on achieving high drug concentration at the site of active disease। High drug concentration at the site of active disease जो है वो बेसिकली जो है अचीव करता है, बेसिकली आपके पास अचीव हो जाती है 5-aminosalicylic acid के थ्रू आपके पास बेसिकली इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है। जैसे हमने डिफरेंट फॉर्मुलेशन जो है वो देखी कि हम कैसे इसकी इफेक्ट, क्योंकि हमने देखा कि 5-aminosalicylic एसिड क्या है वो लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो सिस्टमिक इफेक्ट इसमें प्रोड्यूस नहीं करता। तो हम जो है बेसिकली जो जितनी एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ड्रग की पहुंचेगी एक्टिव साइट के ऊपर उतना ही ज्यादा इफेक्टिवनेस जो है वो 5-aminosalicylic एसिड की प्रोड्यूस होगी। 5-aminosalicylic acid suppositories or enemas are useful in patients with ulcerative colitis or Crohn's disease confined to rectum or distal colon। 5-aminosalicylic acid suppositories और enemas जो है वो यूजफुल होते हैं उन पेशेंट में जो ulcerative colitis और Crohn's disease के पेशेंट हैं जिसमें आपके पास जो है आपके पास डिजीज कन्फाइंड हो गई है रेक्टम और डिस्टल कॉलम में। तो वहां पे हम जो है डिस्टल कॉलम और रेक्टम अगर आपके पास इन्वॉल्व है तो हम सपोजिटरीज और एनिमा 5-aminosalicylic एसिड के देते हैं ताकि जो है वो पेशेंट को ट्रीट किया जा सके। इन पेशेंट विद ulcerative colitis और Crohn's colitis that extend to proximal colon both the azo compound and mesalamine formulations are useful। जिनके अंदर प्रॉक्सिमल कॉलॉन तक Crohn's disease ulcerative colitis एक्सटेंड हो गई है तो एजो कंपाउंड और मेसालामाइन फॉर्मुलेशन हम इनको एडमिनिस्टर करते हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ Crohn's disease involving small bowel, जहाँ पे स्मॉल बाउल इन्वॉल्व है वहाँ पे मेसालामाइन कंपाउंड which release 5-aminosalicylic acid in small intestine have a theoretical advantage over एजो कंपाउंड। Adverse effect: the most common problem are dose related and include nausea, gastrointestinal upset, headache, arthralgia that is joint pain, myalgia, muscle pain, bone marrow suppression and malaise, fatigue etc। आपके पास जो है malaise में क्या है फटीग होती है, टायर्डनेस रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये बेसिकली ज्वाइंट पेन प्रोड्यूस करता है, मसल पेन प्रोड्यूस करता है। एज पर जितनी ज्यादा डोज उसकी जो है वो एब्जॉर्ब हुई है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अफेक्ट आएंगे। बोन नर्व सप्रेशन कॉज करेगा, मेलेज प्रोड्यूस करेगा। हाइपरसेंसिटिविटी टू सल्फापायरिडीन जो कि आपके पास होती है बेसिकली रेयरली 5-aminosalicylic एसिड के में जो है वो रेयरली होती है, लेकिन अगर प्रोड्यूस हो जाए तो सीवियर आपके पास फीवर होगा, एक्सुडेटिव डर्मेटाइटिस, पैनक्रेटाइटिस, निमोनाइटिस, हेमोराइटिक एनीमिया, ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल, पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम और हेपेटाइटिस प्रोड्यूस होगा। Sulfasalazine has also been associated with oligospermia, which reverse on upon the discontinuation of the drug। जैसे आप डिसकंटिन्यू करेंगे तो oligospermia जो है वो आपके पास ट्रीट हो जाता है। Sulfasalazine impair folate absorption and because it impair folate absorption that is it produce a bone marrow suppression to some extent। नेक्स्ट क्या है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। आपके पास दो एजेंट जो है वो आईबीडी के अंदर यूज किए जाते हैं, प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन। हाइड्रोकॉर्टिजोन एनिमास फॉर्म ऑफ सपोजिटरीज आर यूज्ड टू मैक्सिमाइज colonic tissue effect and minimize systemic absorption by
topical treatment of active IBD in the rectum and sigmoid colon. बेसिकली हाइड्रोकोर्टिजोन के एनीमास फॉर्म सपोजिटरी जो है वो आपके जो है वो मैक्सिमाइज करने के लिए आपके लोकल इफेक्ट मैक्सिमाइज हो जाए और ट्रॉपिकल सिस्टमिक इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो सके, तो हम आईबीडी के अंदर जो है वो रेक्टम और सिग्मॉइड कोलॉन रिलेटेड आईबीडी के अंदर इसके एनीमास और सपोजिटरीज यूज करते हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोकोर्टिजोन इज रिड्यूस्ड विद रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन, although 50 to 30% of the administered dose is still absorbed. हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन को रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, लेकिन 50 to 30% एब्जॉर्प्शन हो जाती है ब्लड के अंदर. Budesonide is a potent synthetic analog of prednisolone that has a high affinity for glucocorticoid receptor but is subject to rapid first pass hepatic metabolism impacted by cytochrome 3A4, resulting in low oral bioavailability. Basically budesonide आपके पास पोटेंट सिंथेटिक एनालॉग है प्रेडनिसोलोन का, जो कि हाई एफिनिटी रखता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स के लिए, लेकिन इसका जो मेजर साइड इफेक्ट वो क्या है, वो क्या रैपिड फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में जाता है साइटोक्रोम 3A4 के थ्रू, जिसकी वजह से जो है उसकी जो लो ओरल बायोअवेलेबिलिटी है. A control release oral formulation of budesonide Endocort is available that release the drug in the distal ileum and colon. Basically Endocort जो है वो आपके पास कंट्रोल रिलीज ओरल फॉर्मुलेशन है budesonide की, जो कि जो है वो डिस्टल इलियम एंड कोलॉन में जो है वो रिलीज करती है budesonide को. The bioavailability of the control release budesonide capsule is approximately 10%. इसकी bioavailability है. As in other tissue, glucocorticoids inhibit, basically जो आपका इसका फंक्शन है glucocorticoids वो क्या inhibit the production of inflammatory cytokines, it is tumor necrosis factor, alpha interleukin, chemokines, interleukin 8 इनको क्या करता है, इनकी प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है एक्सप्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स. एक्सप्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल एडिशन मॉलिक्यूल जो कि एक्सप्रेस होते हैं सेल के ऊपर, उनको जो है उनकी एक्सप्रेशन को डिक्रीज कर देता है, इनहिबिट करता है जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस, फॉस्फोलिपेज A2, जिसकी वजह से आपके पास फर्दर जो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल इन्फ्लेमेटरी जो है प्रोस्टाग्लैंड आपके पास जो है वो प्रोड्यूस होते हैं थ्रू साइक्लोऑक्सीनेज और लिपोऑक्सीनेज पाथवे, तो फॉस्फोलिपेज A2 को इनहिबिट कर देता है. फॉस्फोलिपेज A2 ही इनहिबिट हो जाएगा तो आपके पास फर्दर इस पाथवे के डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस नहीं होंगे जो कि आपके पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं. एंड आपके पास जो है वो NF कापा बीटा को भी जो है वो न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा को भी जो है वो आपके पास उसकी ट्रांसक्रिप्शन को भी इनहिबिट कर देता है. Glucocorticoids are commonly used in the treatment of patients with moderate to severe active IBD. Glucocorticoid जो है वो commonly यूज होता है उन पेशेंट के जो moderate to severe active IBD के साथ हैं. आपके पास जो है मॉडरेट टू सीवियर यानी सीवियर की सीवियरिटी की तरफ कंडीशन अब टर्न मूव कर रही है तो हम इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं. इन सीवियरली इल पेशेंट द ड्रग्स आर यूजुअली एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली. सीवियरली इल पेशेंट में तो हम इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करेंगे. फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इन्वॉल्विंग द रेक्टम एंड सिग्मॉइड कोलॉन, rectally administered corticosteroids are preferred because of their lower systemic absorption. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आईबीडी में आपके पास रेक्टम और सिग्मॉइड कोलॉन इन्वॉल्व है तो रेक्टली एडमिनिस्टर करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को ताकि उसकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज किया जा सके. Oral control release budesonide 9 mg per day is commonly used in the treatment of mild to moderate colon disease involving the ileum and proximal colon. माइल्ड टू मॉडरेट कॉर्न डिजीज के अंदर 9 मिलीग्राम पर डे की डोज में हम जो है ओरल कंट्रोल रिलीज ऑफ budesonide की टैबलेट जो है एडमिनिस्टर करते हैं, जो बेसिकली आपके पास जो है कंट्रोल रिलीज फॉर्म में budesonide को रिलीज करती है आपके पास इलियम में और प्रॉक्सिमल कॉलम में. It appears to be slightly less effective than prednisolone. आपके पास budesonide जो है वो less effective है as compared to prednisolone in achieving clinical remission. Clinical remission जो है उसके को एक्सपेक्ट से जो है आपके पास जो budesonide है वो prednisolone से less effective है. But because it possesses significant less adverse systemic effect, that is why we use budesonide and we run the budesonide in clinical practice. Corticosteroids are not useful for maintaining disease image. Basically corticosteroids हमारे पास disease remission में
यूज नहीं होते। अदर मेडिकेशन सच एज अमीनोसैलिसाइलेट इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट शुड बी यूज फॉर द रिमीजन ऑफ द डिजीज। नेक्स्ट हमारे पास है प्यूरिन एनालॉग एज़ोथ्योप्रिन एंड 6-mercaptopurine. Azathioprine and 6-mercaptopurine are purine antimetabolites that have immunosuppressive properties. ये दोनों आपके पास क्या है, प्यूरिन एंटीमेटाबोलाइट्स हैं जो कि इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टीज रखते हैं। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ एज़ोथ्योप्रिन is 80% is superior to 6-mercaptopurine, that is 50%. After absorption of azathioprine is rapidly converted into non-enzymatic process to a 6-mercaptopurine. एज़ोथ्योप्रिन आपके पास आफ्टर एब्जॉर्प्शन कन्वर्ट होती है थ्रू नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस टू 6-mercaptopurine में कन्वर्ट हो जाती है। 6-mercaptopurine सब्सिक्वेंटली undergo a complex biotransformation while competing catabolic enzyme that is xanthine oxidase and thiopurine methyl transferase, इसके थ्रू जो है 6-mercaptopurine जो है वो बायोट्रांसफॉर्म हो जाती है। कैटाबॉलिक एंजाइम कौन से हैं, xanthine oxidase and thiopurine methyl transferase, इनमें के थ्रू जो है ये आपके पास जो है वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि एनाबॉलिक पार्ट पे प्रोड्यूस करता है इसके एक्टिव थायोगुआनिन न्यूक्लियोटाइड्स। Azathioprine and 6-mercaptopurine have a serum half-life of less than 2 hours. However, active thioguanine nucleotides are concentrated in cells, resulting in prolonged half-life of the. Basically, इसकी अपनी Azathioprine और 6-mercaptopurine की जो half-life है वो 2 hours से भी कम है, लेकिन जो इसके एक्टिव मेटाबोलाइट जब आपके पास एब्जॉर्ब हो जाते हैं सेल में कंसंट्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी half-life जो है वो prolong हो जाती है। The prolonged kinetics of 6-thioguanine nucleotide result in a median delay of 17 weeks before the onset of therapeutic benefits from oral azathioprine or 6-mercaptopurine is absorbed in the patient with inflammatory bowel disease. Azathioprine and 6-mercaptopurine are important agents in the induction and maintenance of remission of ulcerative colitis and Crohn's disease. Basically, azathioprine 6-mercaptopurine आपके पास एज एन इम्पोर्टेंट एजेंट यूज किए जाते हैं किसमें, मेंटेनेंस ऑफ रिमिशन ऑफ द ulcerative colitis and Crohn's disease के अंदर। Most patients with normal thiopurine S-methyl transferase activity are treated with 6-mercaptopurine in dose of 1 to 1.5 milligram per kg per day और azathioprine 2 to 2.5 milligram per kg per day। जो आपके पास नॉर्मल, जिनके अंदर नॉर्मल क्वांटिटी नॉर्मल मेटाबोलाइजर्स हैं, जिनके अंदर नॉर्मल आपके पास थायोप्रिन एस मेथाइल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी मौजूद है, उनके लिए 6-mercaptopurine की डोज जो है वो 1 to 1.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे दी जाती है और एज़ोथ्योप्रिन की डोज 2 to 2.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे दी जाती है। After 3 to 6 months of the treatment, 50-60% of patients with active disease achieve remission. 3 to 6 मंथ के बाद जो पेशेंट आपके पास जो 50-60 पेशेंट के अंदर जो है वो एक्टिव डिजीज यानी कि जो एक्टिव डिजीज के साथ उनमें रिमिशन देखी गई है, रिकवर करते हैं, डीजनरेशन ऑफ द डिजीज जो है डिक्रीज हो जाती है, डीजनरेशन बाय डिजीज जो है वो टिश्यू की डिक्रीज हो जाती है। These agents help maintain remission in up to 80% of the patient. Among patient 80% of basic remission होती है, इनमें 80% पेशेंट में रिमिशन कॉज करते हैं। अमॉन्ग पेशेंट वो डिपेंड ऑन लॉन्ग जो कि लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, उनके अंदर 80% ऑफ द रिमिशन जो है वो देखी गई है। और या फिर आपके पास जो है हम उनके अंदर या तो वो पेशेंट मीन्स कि वो पेशेंट जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के साथ थे उनमें प्यूरिन एनालॉग्स को एड ऑन करते हैं, तो प्यूरिन एनालॉग उनकी या तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स की डोज को रिड्यूस कर देते हैं या फिर उनकी जो टोटली एलिमिनेट कर देते हैं और रिमिशन प्रोड्यूस करते हैं। Dose-related toxicities of azathioprine 6-mercaptopurine include nausea, vomiting, bone marrow depression. जो bone marrow depression वैसे क्या है, leukopenia, मैक्रोसाइटोसिस, एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉज हो जाता है एंड हेपेटिक अल्सर प्रोड्यूस होती है। एलोपेरानॉल क्योंकि आपके पास xanthine oxidase इनहिबिटर है, तो xanthine oxidase के कैटाबॉलिज्म जो कि xanthine oxidase जो कि कैटाबोलाइज कर देता है और इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देता है, तो आपके पास एलोपेरानॉल के साथ एडमिनिस्टर करेंगे तो 6-thioguanine न्यूक्लियोटाइड जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, लेकिन सीवियर ल्यूकोपीनिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जगह है मिथोट्रिक्सेट।
It is another anti-metabolite that has beneficial effects in number of chronic inflammatory disease. Number of chronic inflammatory disease include Crohn disease, rheumatoid arthritis and cancer. ये आपके पास नंबर ऑफ chronic inflammatory disease के अंदर यूज होता है, जिसमें हमारे पास rheumatoid arthritis और कैंसर में भी हम इसे यूज करते हैं. Methotrexate may be given orally. 50 to 90% bioavailable होता है. Orally जो है 50 to 90%. Subcutaneous और intramuscularly आपके पास 100% bioavailable है. The principal mechanism of action is inhibition of dihydrofolate reductase, जो कि enzyme important for the production of thymidine and purine. आपके पास जो है सेल की प्रोलिफरेशन में थायमिडीन एंड प्यूरिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो जब आपके पास इनहिबिट हो जाता है डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, तो थायमिडीन और प्यूरिन प्रोड्यूस नहीं होते, जिसकी वजह से एंटी प्रोलिफरेटिव एक्टिविटीज की आती है. At high doses used for chemotherapy, methotrexate inhibits cellular proliferation, जैसे हमने अभी डिस्कस किया. At low doses used in the treatment of inflammatory bowel disease, that is 12 to 25 milligram per week, the anti-proliferative effect may not be evident. Low dose के ऊपर anti-proliferative effect evident नहीं है. Methotrexate may interfere with the inflammatory action of interleukin 1. Inflammatory action of interleukin 1 के साथ interfere करता है. It may also stimulate increased release of adenosine. Adenosine के आपके पास local hormone है, that is an endogenous anti-inflammatory autopoiesis, जो कि local hormone है और आपके पास anti-inflammatory effect रखता है. Methotrexate may also stimulate apoptosis and death of the activated T lymphocytes. तो आपके पास T lymphocyte की death cause करता है through apoptosis. तो आपका inflammation जो है वो क्या होगी, decrease हो जाएगी. Methotrexate is used to induce and maintain remission in patients with Crohn disease. Its efficacy in ulcerative colitis is uncertain. Methotrexate को हम ज़्यादातर बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, इन remission in patient with Crohn disease के अंदर, Crohn disease के remission के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ulcerative colitis में इसकी efficacy जो है वो uncertain है. At higher dosage, methotrexate may cause bone marrow suppression, megaloblastic anemia, alopecia and mucositis बेसिकली कॉज करता है. यहाँ पे आपके पास जो है हाई डोजेस के ऊपर वही आपके पास बोन मैरो डिप्रेस हो जाती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और म्यूकोसाइटिस जैसे इश्यूज आते हैं. तो हम अगर इसे फोलेट सप्लीमेंटेशन जो है अप टू सम एक्सटेंट इसके साइड इफेक्ट को यूज करती है, और जो है क्योंकि हम इसे लो डोज में दे रहे होते हैं आईबीडी के अंदर, तो इसके जो मेजर साइड इफेक्ट जो हाई डोजेस पे आते हैं वो नहीं आते, और फोलेट सप्लीमेंटेशन इसके जो माइनर साइड इफेक्ट्स हैं उनको कवर कर लेते हैं. Folate supplementation reduces the risk of these events without impairing the anti-inflammatory action. इसके anti-inflammatory action को impair नहीं करता. Anti-tumor necrosis factor therapy. Anti-tumor necrosis factor therapy in 3 monoclonal antibodies to human TNF are approved for the treatment of inflammatory bowel disease, that is infliximab, adalimumab and cetuximab. Infliximab and adalimumab are antibodies of IgG1 subclass. Cetuximab is a recombinant antibody that contain an fat fragment. Basically fat fragment contain करता है और FC portion जो है इसमें लैग करता है. Fat fragment is conjugated to polyethylene glycol. इसका जो fat fragment है वो polyethylene glycol के साथ conjugate हुआ है. Fat portion of infliximab and cetuximab are chimeric. अब infliximab और cetuximab का जो fat portion वो chimeric होता है. Chimeric mouse human antibodies मीन्स के एक एंटीबॉडी आपके माउस से ली गई, एक इसका जो है वो ह्यूमन से ली गई. तो chimeric जो है वो मिक्सचर होता है बेसिकली. आपके पास बट adalimumab is fully immunized. आपके पास adalimumab है वो fully humanized है. It is not a chimeric type of antibody, monoclonal antibody. Adalimumab and cetuximab are administered by subcutaneous injection के थ्रू adalimumab और cetuximab को एडमिनिस्टर करते हैं. The half life of both is approximately 2 weeks. आपके पास मौजूद इन्फ्लेक्सिमैब आपके पास इंटरमेस इन्फ्यूजन के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है और इसकी हाफ लाइफ 8 to 10 days है. All 3 agents bind to soluble and membrane bound TNF with high affinity के साथ जाके बाउंड होते हैं. TNF जो कि आपके पास बेसिकली जो है वो tumor necrosis फैक्टर है, जो कि इन्फ्लेमेशन में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन अगर प्रोड्यूस हो जाता है तो इसको आपके पास जो है जाके बाइंड कर जाते हैं, टीएनएफ के साथ प्रिवेंट करते हैं साइटोकाइंस की प्रोडक्शन को. आपके पास जब टीएनएफ से जाके बाइंड करते हैं. बाइंडिंग ऑफ ऑल 3 एंटीबॉडीज टू मेम्ब्रेन बाउंड टीएनएफ आल्सो कॉजेस रिवर्स सिग्नलिंग दैट सप्रेसेस साइटोकाइन रिलीज. रिवर्स सिग्नलिंग प्रोड्यूस करते जब आपके पास ये एंटीबॉडीज बाइंड होती हैं
तो आपके पास जो है वो TNF के रिसेप्टर रिवर्स सिग्नलिंग प्रोड्यूस करते हैं और CM आपके पास साइटोकाइन के रिलीज को सप्रेस कर देते हैं। When infliximab adalimumab bind to membrane-bound TNF, the Fc portion of the human IgG1 region promotes antibody-mediated apoptosis. बेसिकली जो इन्फ्लेक्सिमैब अडेलीमुमैब में जो है, क्योंकि एफसी पोर्शन आपके पास मौजूद है, जब किसी टेलिजुमैब में एफसी पोर्शन नहीं होता, तो यहाँ पे आपके पास जो एफसी पोर्शन है वो क्या करता है, वो एंटीबॉडी मीडिएटेड एपोप्टोसिस कॉज करता है आपके जो है टी लिम्फोसाइट्स वगैरह में। आपके पास बेसिक कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन प्रोड्यूस करता है और सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी और एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस को डिक्रीज कर देता है। All three agents are approved for the acute and chronic treatment of patients with moderate to severe Crohn disease who have had an inadequate response to conventional therapy. जो पेशेंट आपके पास जो है वो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, क्रोनिक पेशेंट है यानी क्रोनिक ट्रीटमेंट पर हैं, सीवियर कॉर्न डिजीज के साथ है या मॉडरेट टू सीवियर कॉर्न डिजीज के साथ है, उन पेशेंट्स के अंदर ये तीनों एजेंट जो हैं वो बहुत अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और अप्रूव्ड हैं इन पेशेंट में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। Infliximab also is approved for the acute and chronic treatment of moderate to severe ulcerative colitis. Moderate to severe ulcerative colitis में infliximab जो approved है। With induction therapy, all three agents lead to symptomatic improvement in 60% and disease remission in 30% of the patient with moderate to severe Crohn disease. 30% ऑफ द रिमिशन कॉज करता है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कॉर्न डिजीज के पेशेंट हैं आपके पास बेसिकली, और वो पेशेंट जो कि इंक्लूडिंग पेशेंट जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के थेरेपी पे थे और जो कि रिस्पॉन्ड नहीं करते 6 मंथ तक मेथोट्रेक्सेट को, तो उनके अंदर जो है वो 30% रिमिशन कॉज करता है और 60% आपके पास सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट देता है। मीन कि 60% जो सिम्टम्स आए होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। ये आप एक स्लाइड्स में बिब्लियोग्राफिक फार्माकोलॉजी लिपिनकॉर्ड फार्माकोलॉजी से ली गई हैं। अगर आपने मेरे लेक्चर बहुत प्रॉपर्ली सुना है तो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज बेस्ट प्रोवन टू मेंटेन रिमिशन इन Crohn disease? Corticosteroid, azathioprine, oral 5-aminosalicylate acid. Next is what is irritable bowel syndrome or IBS? Intestinal damage as a result of disease. Basically irritable bowel syndrome or IBS is basically a group of symptoms that affect the abdomen और आपके पास irritable bowel syndrome जो है वो another term है for celiac disease या फिर आपके पास जो है वो another term है for stomach flu। सिम्टम ऑफ IBS क्या हो सकते हैं? आपके पास डायरिया हो सकता है, गैस हो सकता है, swelling of bloated stomach area है, या इनमें से कोई all of the above।